Good morning, student. Once again, I'm here to teach you the lesson number 5 from your book Moment, The Happy Prince. So, student, till here you have read about the sensitivity of Happy Prince. He was very good, the statue of good nature, and he was a good soul. He sacrificed his red ruby for a poor seamstress, a lady. Her son was ill, and he requested the swallow bird who was going to Egypt. He requested him to stay with him for a night, and he agreed to help him. So he requested the swallow bird to take away his ruby and handed over it to the seamstress, and because she was very poor and her son was ill. So till here we have read, and now we will resume the rest part of this lesson. Then the swallow bird flew back to the happy prince and told him what he had done. अब हैप्पी जो swallow bird था उसने वो रूबी उस बच्चे को दी, वहाँ पे टेबल के पास रख के वहाँ से उड़ के वापस आ जाता है. Then the swallow bird flew back to the happy prince की तरफ आया and told him that what he had done. जो उसने किया था वो सारा उसने बता दिया. It is curious, he remarked. उसने कहा ये बड़ा जिज्ञासा की बात, अच्छी बात है. But I feel quite warm now. लेकिन अब मुझे काफ़ी, कहता है, feel quite warm now, मुझे गर्मी लग रही है. Although it is so cold. यद्यपि गर्मी का मौसम नहीं है, ठंड का मौसम, पर मुझे गर्मी लग रही है. That is because you have done a good action, said the prince. Prince ने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया है. You have done a good job. And the little swallow began to think and then fell asleep. अब सोचने लगा swallow bird, सोचते हुए, और वो सो जाता है. Thinking always made him sleepy. और जब वो सोचना शुरू कर देता तो उसको नींद आ जाती है swallow bird को. One day broke and I flew down to the river and had bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirit at the prospect. और इस विचार से कि मुझे जाना है, वो सोच रहा था ऐसा, वो नहाया रिवर पे जाके, उसने बात किया और कहता है कि आज रात मुझे जाना है. swallow bird ऐसा सुन को कहते हुए, he was in high spirit at the prospect, और विचार से काफ़ी वो खुश था, हैप्पी था. He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. वो जो swallow bird था इस विचार से काफ़ी खुश था और सभी monuments वगैरह जो पुरानी जो चीज़ें बना रखी थी उन सभी पे जाके बैठता है. on the top of church steeple, और चर्च का जो ऊपरी जो अलार्म वाला इस टॉप पे, वहाँ पे जाके भी बैठता है. When the moon arose, he flew back to the happy prince. जब moon rose उठता है ऊपर की तरफ, यानी कि उगता है, चंद्रमा निकलता है, तो he flew back to the happy prince की तरफ जाता है. Have you any commission for Egypt? He cried. Commission यानी work. हैप्पी प्रिंस से swallow bird ने पूछा कि क्या आपको इजिप्ट में कोई काम है. आई एम जस्ट स्टार्टिंग, अब मैं जा रहा हूँ. swallow little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? अब हैप्पी प्रिंस ने उससे एक बार फिर रिक्वेस्ट की swallow bird से कि आप क्या आज रात लिटिल swallow रुकोगे. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द swallow bird ने आंसर किया कि मेरा इजिप्ट में वेट किया जा रहा है. Swallow, little swallow, said the prince, far away across the city I see the young man in garret. He is leaning over the desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violet. His hair is brown and crisp, and his lips
are red as a pomegranate and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. There's no fire in the garret and hunger has made him faint. अब स्वेलो बर्ड से हैप्पी प्रिंस एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि फार अवे अक्रॉस द सिटी, देखो वहाँ पे दूर, आई सी यंग मैन इन द गैरेट, वहाँ पे जो एक बच्चा वहाँ पे है, वहाँ ऊपर की तरफ देखो, अटारी की तरफ गैरेट, ही इज लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विद हिज पेपर्स, वो झुका हुआ है पेपर्स के ऊपर, कवर्ड विद पेपर्स, ही इज लीनिंग ओवर ए डेस्क, डेस्क के ऊपर झुका हुआ है जहाँ पे पेपर रखे हुए हैं, और वहाँ पे ग्लास के पास से ही बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट, वॉयलेट के मुरझाए हुए फूल भी हैं, हिज हेयर इज़ ब्राउन, उसके बाल ब्राउन कलर के हैं, भूरे रंग के हैं, एंड क्रिस्प और सख्त से हैं, एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमेग्रेनेट, और उसके होठ लाल लाल पोमेग्रेनेट अनार जैसे हैं, एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसके बड़ी बड़ी और सोपन सील आँखें हैं, ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर के डायरेक्टर के लिए वो एक प्ले नाटक लिखने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन ठंड इतनी अधिक है कि वो लिख नहीं पा रहा है, देयर इज़ नो फायर इन द गैरेट, और अंगीठी में आग भी नहीं है, आग नहीं जला रखी, द हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख ने उसको फेंट कमज़ोर बना दिया है, आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे लिए एक रात और इंतज़ार करूँगा, सेड द स्वेलो, स्वेलो बर्ड ने अब कहा, हु रियली हैड ए गुड हार्ट, जिसका दिल बहुत अच्छा होता है, ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, उसने पूछा कि क्या एक और रूबी लेनी है यंग जो प्ले राइटर था, whose face was offended because of hunger and he couldn't write because of the too cold. Alas, I have no ruby now. अब दुख के साथ उसने कहा कि मेरे पास कोई रूबी अब बची नहीं है, कोई लाल मणि नहीं है। प्रिंस ने कहा My eyes are all that I have left. अब मेरी आँखें ही बची हैं। They are all made of rare sapphires. अब मेरी जो नीली मणियों की रेयर जो होते हैं, दुर्लभ होते हैं, उसके बने हुए आँखें हैं। Which were brought out of the India 1000 years ago. जो कि भारत से ये कई वर्षों पहले लाई गई हैं, ये बड़ी रेयर किस्म की हैं। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. उसने कहा कि इनमें से एक आप निकालो और प्ले राइटर जो था, नाटककार, उसके पास वो जो लड़का था, हैंग्री था, फेंटेड था, उसके पास ले जाओ। He will sell it to the jeweler. वो ज्वेलर को बेचेगा इसको। And buy firewood and finish his play, he said. और आग के लिए लकड़ियाँ खरीदेगा और अपना जो नाटक है उसको कंप्लीट करेगा। Dear Prince, said the swallow, I cannot do that. And he began to weep. स्वेलो बर्ड ने ऐसा करने से इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता, और वो रोने लग जाता है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. जैसा मैं कहता हूँ लिटिल स्वेलो, वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. अब वो स्वेलो जो बर्ड होता है वो आइज फायर जो कि आँखों में थे नीलमणि उसको निकालता है और यंग मैन के गैरेट जो कि छज्जे के ऊपर छत पे था वहाँ पे चला जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, वहाँ पे जाना आसान था। एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ, छत के अंदर एक होल था, एक जगह थी जाने के लिए, तो वहाँ जाना आसान था। थ्रू दिस ही डार्टेड, वह एंटर हुआ इसके माध्यम से। एंड केम इन टू रूम, कमरे में आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड। अब जो यंग लड़का था उसने अपने जो इज हेड था, सिर, अपने हाथों से पकड़े हुए था, छुपा रखा था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड स्विंग, इसलिए उसने जो बर्ड्स जो स्वेलो एंट्री की उसके पंखों की फड़फड़ाहट, फ्लटरिंग साउंड को वो सुन नहीं पाया। ही कुडंट लिसन टू द साउंड ऑफ
sound of fluttering of the wings due to the burial of his head into his hand. And when he looked up, he found the beautiful sphere lying on the withered violet. और जब उसने ऊपर देखा तो उसको एक नीलमणि दिखाई दी मुरझाए हुए फूलों के पास. आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, क्राइड. खुशी से वो चिल्लाया कि मुझे फ़ैन मिल गए हैं, मुझे प्रशंसा करने वाले मिल गए हैं. दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर. और ये किसी मेरे बड़े फ़ैन का जो प्रशंसक उसका शुभचिंतक का काम है. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले. अब मैं अपना जो प्ले है वो फिनिश कर सकता हूँ. एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी. और बड़ा खुश हो जाता है बच्चा. द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर. अगले दिन स्वेलो जो बर्ड होता है वो बंदरगाह की तरफ जाता है. ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर वर्किंग. और वो शिप पे वहाँ बैठ जाता है और सेलर्स जो होते हैं वहाँ पे नाविक उनको देखता रहता है. आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो बट नोबडी माइंडेड. एंड व्हेन द मून रोज फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. उसने अपने आप को कहा कि मैं आज रात जब जाऊँगा, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. और व्हेन द मून रोज जब चांद निकला तो ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस की तरफ वो फिर से चला जाता. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड. उसने कहा कि मैं अब आपको बाय करने आया हूँ, यानी कि अंतिम मुलाकात, अब मुझे जाना है. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. अब उसने फिर स्वेलो बर्ड से हैप्पी प्रिंस ने रिक्वेस्ट किया कि क्या आप एक रात और मेरे साथ नहीं गुजार सकते. इट्स विंटर आंसर द स्वेलो एंड द स्नो विल सून बी हियर. उसने कहा कि ठंड का मौसम है एंड स्नो विल और बर्फबारी होने वाली है. इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म एंड ग्रीन ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज. अब उसने कहा कि इजिप्ट में मौसम गर्म है, सूर्य की किरणें पाम ट्री के ऊपर गिरते हैं. एंड क्रोकोडाइल लाइज इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम. और क्रोकोडाइल जो होता है मगरमच्छ वहाँ कीचड़ में एंजॉय करता है और लेजली लुक लेजली अबाउट देम. और उनकी तरफ जो पाम ट्री है उनकी तरफ देखता रहता है. In a square below, said the happy prince, there stand a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. She has no shoes and stocking and her little head is bare. Pluck out my other eyes and give it to her and her father will not beat her. अब जो हैप्पी प्रिंस है he was very very sensitive to the miseries of the people of his city. He saw a little girl who lost her, who made her mastic fall into the gutter. So ये स्वेलो बर्ड से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी एक स्फायर लेके जो एक बची हुई है उसकी आइज़ में उसको लेके उस बच्ची को दो. वो बच्चे उसके सारे जो मैस्टिक गटर में गिर गए हैं, भीग गए हैं, ऑल स्पॉइल्ड. हर फादर विल बिल्ट हर. उसका पापा उसको पीटेगा, पिटाई करेगा अगर वो घर पे कुछ पैसे नहीं ले जाती है तो. एंड सी इज़ क्राइंग. और वो रो रही है बच्ची. सी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग. ना उसके पास जूते हैं ना जुराबे हैं. एंड हर लिटिल हैंड्स इज़ बेयर. और उसके हाथ भी नंगे हैं, ग्लव्स वगैरह नहीं हैं. हेड इज़ बेयर. कैप नहीं पहन रखी है, सिर नंगा है. प्लक आउट माई अदर आइज़. मेरी दूसरी आँख में जो फायर उसको ले जाओ. एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर. और ये उसको दे दो ताकि उसका पापा उस बच्ची की पिटाई ना करे. आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो बट आई कांट प्लक आउट योर आइज़. यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड दैन. अब उसने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओगे. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू. मैं जैसा तुम्हें आदेश देता हूँ वैसा करो. सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस आइज एंड डार्टेड डाउन विद इट.
अब लिटिल स्वेलो बर्ड ने अनविलिंगली उसकी जो प्रिंस था उसके फायर जो आँखें थी उसकी निकाली और उनको लेकर वो उड़ के चला जाता है। ही swooped past the match girls, उड़ के उस लड़की के पास से गुजरता है, एंड slipped the jewels into the palm of her hand, वो जो ज्वेलरी थी उसके हाथ में रख देता है। What a lovely bit of glass, cried the little girls, अब लड़के खुश होकर चिल्लाते हैं कि कितना अच्छा है ये bit of glass, and she ran home laughing, घर खुश होकर बच्ची जाती है। Then the swallow came back to the prince, you're blind now, he said, so I will stay with you always। अब जो स्वेलो बर्ड है वो उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास आ जाता है और वो कहता है कि तुम अब ब्लाइंड हो, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं आपके पास हमेशा रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, अब पुअर प्रिंस ने कहा कि नहीं, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जाना है। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फिट, और वो ऐसा कह के कि मैं अब तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। लिटिल स्वेलो बर्ड ने डिटरमाइन किया नॉट टू लीव द प्रिंस अलोन, एंड ही स्लेप्ट एट प्रिंस फिट, अब वो जाके प्रिंस के पैरों में सो जाता है। सो स्टूडेंट्स, we will wind up the video here, and the rest part of this lesson will be taught to you in the next video. It's longer, so it's very difficult to read it out for you in one take. So we have divided the lesson in 3 parts, first part and 2 remaining parts. So read it carefully, try to apprehend its meaning, and this is very good story about the sensitivity of the happy prince. So till then, keep practicing, keep learning. May God bless you all. Have a great day.